Hello friends. Now today we are started session number 7, chapter 7, plant growth and mineral nutrition. These are the last session. In this session we are cover the photoperiodism and vernalization. So now in this session the first topic is a photoperiodism. So now what is photoperiodism? The photoperiodism, the response of plant to the relative length of light and dark period with reference to initiation of flowering is called photoperiodism. So once again I will repeat. What is photoperiodism? The response of plant to the relative length of light and dark period with reference to initiated of flowering. It's called photoperiodism. So now photoperiodism term was used by American plant breeder Garner and Allard in 1920. So once again I will repeat. photoperiodism किसको बोलते हैं? It is a response of plant. किसका response है? Plant का to the relative length of light and dark period for the initiation of flowering. Initiation of flowering means कोई भी plant है जो प्लांट रिस्पॉन्स करता है, किसको करता है? लाइट और डार्क पीरियड को, फॉर द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, उसको फ्लावरिंग आने के लिए, मीन्स प्लांट फ्लावरिंग इनिशिएशन करने के लिए, आने के लिए लाइट और डार्क पीरियड को रिस्पॉन्स करता है. उस लाइट एंड डार्क पीरियड की जो लेंथ है, रिलेटिव लेंथ, इज रेफर एज फोटोपीरियोडिज्म. इसलिए हर एक सीजन में आपको अलग अलग किस्म की फ्लावर्स मिलते हैं. कुछ फ्लावर जैसे कि वो साल भर मिलते हैं, बट नाउ कुछ फ्लावर है वो सीजनल रहते हैं बिकॉज दे गिव रिस्पॉन्स टू द फोटोपीरियोडिज्म. सो नाउ फोटोपीरियोडिज्म टर्म वॉज फर्स्ट यूज किसने की थी? अमेरिकन प्लांट ब्रीडर गार्नर एंड अलार्ड इन 1920. So now the photoperiodism. What is photoperiod? Critical photoperiod किसको बोलेंगे? The duration of light required to induce flowering in the plant is called as a critical photoperiod. So photoperiod के लिए बोलेंगे duration of light. Light का जो duration है to require induce of flowering. Flowering आने के लिए light की जो requirement है, light का जो duration है for the initiation of flowering is called as a critical photo period. So now according to the duration of this photo period, the Garner and Allard classify the flowering plant into the three types: long day plant, short day plant and day neutral plants. So once again I will repeat all these definitions. So what is photoperiodism? The response of plant to the relative length of light and dark period. Relative length of light and dark period for the initiation of flowering. It's called as a photoperiodism. Okay, photoperiodism means flower आने के लिए जो ड्यूरेशन लगता है लाइट पीरियड का और डार्क पीरियड का, उसको बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म. वंस अगेन मैं वापस रिपीट क्यों कर रहा हूँ? ये कंसेप्ट समझने के लिए ईजी है. आप लोग हर एक सीज़न में फ्लावर देखते हो, तो नाउ ठंडी की सीज़न में आपको रिलेटिव लेंथ जो लाइट पीरियड है वो कैसे रहता है? कम रहता है, जल्दी शाम हो जाती है. सुबह 7 बजे तक लाइट नहीं आती. बट नाउ इन अभी जो समर सीज़न चल रहा है, समर सीज़न में कैसा है? सुबह मॉर्निंग 6 के पहले ही सूरज पूरा उजाला आ जाता है, शाम को बहुत देर तक लाइट रहती. तो रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट समर सीज़न में ज़्यादा है और जो डार्क पीरियड है वो कम है. तो इस सीज़न में आने वाली फ्लावरिंग अलग है, विंटर सीजन में आने वाली फ्लावरिंग अलग है, क्योंकि कोई भी जो सीजनल प्लांट है वो रिस्पॉन्स करता है ये लाइट और डार्क पीरियड को. किसके लिए रिस्पॉन्स करता है? फॉर द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग. इसको ही हम लोग फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं. और गार्नर और अलार्ड ने फोटोपीरियोडिज्म कंसेप्ट फर्स्ट बार एक्सप्लेन किया था इन 1920. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, Garner and Allard classify the flowering plant into the three types. Garner और Allard ने कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया था? 3 टाइप्स: लॉन्ग डे प्लांट,
short day plant and day neutral plants. So once again I will repeat, what is critical photo period? Critical photo period किसको बोलते हैं? ड्यूरेशन ऑफ लाइट को, ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर टू इंड्यूस फ्लावरिंग, जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट लगता है टू इंड्यूस फ्लावरिंग के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं critical photo periods. According on the basis of this critical photo period, the Garner and Allard classify the plant into the three types: short day plant, long day plant and day neutral plant. So first देखते हैं हम लोग long day plants. What is long day plants? The plants which are require exposure of longer photo period. Exposure of longer photo period. It's called as a long day plant. So once again I will repeat, what is long day plant? The plants require the longer light period than the dark period for their initiation of flowering. They are called as a long day plant. long day plant में जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड है वो कैसे चाहिए? ज़्यादा चाहिए देन कंपेरेटिव टू डार्क पीरियड. ओके, फॉर देयर इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, उसको फ्लावरिंग आने के लिए. तो इसको हम लोग उस प्लांट को क्या बोलेंगे? लॉन्ग डे प्लांट. सो अभी जो सीजनल चल रहा है वो लॉन्ग डे प्लांट का चल रहा है. अभी आप लॉन्ग डे प्लांट में कोरिएंडर से लेके बीट से लेके पॉपी से लेके मेंथा, बीट, रेडिश, गेहूं, व्हीट, इसको अभी फ्लावरिंग सीजन है. ओके, तो उसको हम लोग लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लॉन्ग डे प्लांट. क्योंकि स्पिनच जो पालक बोलते हैं अभी इसको फ्लावरिंग आती है, साल भर नहीं आती मगर इस सीजन में फ्लावरिंग आती है. क्योंकि क्रिटिकल लेंथ जो लाइट पीरियड की है वो ज़्यादा है. आज सूरज की किरणें सुबह जल्दी आती है, शाम को लेट जाती है, तो जो लाइट पीरियड वो ड्यूरेशन ज़्यादा है मगर डार्क पीरियड रात छोटी है. ओके, और इस सीजन में जो इनिशिएटेड फ्लावरिंग करते हैं प्लांट उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट. एग्जाम्पल पी, बार्ली है, वीट है, मेंथा है, स्पिनच है, रेडिश है, बीट है. ऑल दीज आर द लॉन्ग डे प्लांट. ओके, इस लॉन्ग डे प्लांट को दूसरा क्या बोलते हैं? शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड कैसे चाहिए? कम चाहिए. तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ शॉर्ट नाइट प्लांट. लॉन्ग डे प्लांट ऑल्सो रेफर एज शॉर्ट नाइट प्लांट. ओके, नाउ द सेकंड कंसेप्ट, व्हाट इज शॉर्ट डे प्लांट? अभी शॉर्ट डे प्लांट किसको बोलेंगे हम लोग? द प्लांट इनिशिएटेड देयर फ्लावरिंग व्हेन द डार्क पीरियड, मीन्स द डार्क पीरियड इज अ मोर देन light period. The plants are called as a short day plant. Once again I will repeat, what is short day plant? The plant initiated their flowering when the dark period is a more than light period. The plants are called as a short day plant. short day plant में प्लांट को फ्लावरिंग इनिशिएटेड होती है, आना स्टार्ट होता है. कब आता है? जब रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क पीरियड कैसे रहेगा? ज़्यादा रहेगा कंपेरेटिव टू लाइट पीरियड. द प्लांट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट डे प्लांट. शॉर्ट डे प्लांट मोस्ट ऑफ द विंटर सीजन, इंडिया में विंटर सीजन में शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं. तो उस टाइम विंटर सीजन में दिन छोटा रहता है, रात बड़ी रहती है. ओके, तो एग्जाम्पल कौन सा है? राइस है, ज्वार है, बाजरा है, कॉस्मोस है, डेलिया आता है, मेरीगोल्ड. मेरीगोल्ड को भी फ्लावरिंग ठंडी में ज़्यादा मिलते हैं अपने को. सोयाबीन है, जैंथियम है. ऑल दीज आर द शॉर्ट डे प्लांट. शॉर्ट डे प्लांट का वापस एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूँ. राइस है, ज्वार है, कॉटन है, मेरीगोल्ड है, डेलिया है, कॉस्मोस है, सोयाबीन है, ओके, जैंथियम है. दीज आर द शॉर्ट डे प्लांट. सो शॉर्ट डे प्लांट ऑल्सो रेफर एज शॉर्ट डे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग नाइट प्लांट्स. ऑल्सो रेफर एज लॉन्ग नाइट प्लांट. लॉन्ग डे प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं. शॉर्ट डे प्लांट को क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग नाइट प्लांट. सो नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ डे न्यूट्रल प्लांट्स. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डे न्यूट्रल प्लांट्स. द फ्लावर इनिशिएटेड देयर फ्लावरिंग बट the critical length of light period and dark period they are not affected.
for their flowering. They are called as a day neutral plant. So in day neutral plants, the plants flowering, but they are not affected by the relative length of light period and day dark period. It's called as a day neutral plant. Day neutral plant में रिलेटिव जो लेंथ है लाइट पीरियड की और डार्क पीरियड की, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है फ्लावरिंग को. ओके तो जो थ्रू आउट साल भर जो फ्लावरिंग मिलता है, दे आर डे न्यूट्रल प्लांट्स. तो डे न्यूट्रल प्लांट में कौन सा है? कुकुम्बर आता है, रोज आता है, टोमेटो आता है, टोमेटो को सनफ्लावर आता है, शू फ्लावर में जासवंती बोलते हैं, चाइना रोज, ये भी डे न्यूट्रल प्लांट में आता है. सो ये हुआ आपका फोटो पीरियोडिज्म. सो वंस अगेन आई विल रिपीट, व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? The response of plant to the relative length of light and dark period for their initiation of their flowering. It's called as a photoperiodism. And photoperiodism concept was given by American plant breeder Garner and Allard in 1920. Okay, what is critical photoperiod? The duration of light required to initiate it in flowering is called as a critical photoperiodism. जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है फ्लावरिंग आने के लिए, उस ड्यूरेशन ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल फोटो पीरियड. फोटो पीरियड्स. ओके सो क्रिटिकल फोटो पीरियड्स, on the basis of this critical photo periods, plants are classified into the three types: short day plant, long day plant and day neutral plants. तो हम लोगों ने आज फोटो पीरियडिज्म में कंसेप्ट क्लियर किया. नाउ नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक इज अ वर्नलाइजेशन. सो व्हाट इज वर्नलाइजेशन? वर्नलाइजेशन इज अ चिलिंग low temperature treatment for the initiation of flowering. It's called as a vernalization. Once again I will repeat, vernalization is a low temperature treatment. Vernalization is a low temperature treatment for initiation of their flowering. It's called as a vernalization. vernalization में उस प्लांट को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट चाहिए उसके लाइफ साइकिल में, तभी उस प्लांट को अर्ली फ्लावरिंग आता है, तो उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट. ओके सो नाउ वर्नलाइजेशन, सो इस फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए उसको क्या चाहिए? चिलिंग ट्रीटमेंट. क्या चाहिए? चिलिंग ट्रीटमेंट. ओके चिलिंग ट्रीटमेंट आएगी तो उसका जो वेजिटेटिव फेज है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. सो नाउ इन द चिलिंग ट्रीटमेंट द 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर इज सूटेबल. कितना टेम्परेचर चाहिए? 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर इज सूटेबल फॉर द गिव द वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट. सो वर्नलाइजेशन वापस में रिपीट करता हूँ, इट इज़ अ कोल्ड ट्रीटमेंट और चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ गिवन टू द जर्मिनेटिंग सीड. किसको दी जाती है वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट? जर्मिनेटिंग सीड टू प्रमोट अर्ली फ्लावरिंग इन द प्लांट. इट्स कॉल्ड एज अ वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन को दूसरा बोलते हैं यारोवाइजेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यारोवाइजेशन. सो व्हाट इज वर्नलाइजेशन? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, द कोल्ड ट्रीटमेंट और चिलिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, गिवन टू द जर्मिनेटिंग सीड टू प्रमोट अर्ली फ्लावरिंग. इट्स कॉल्ड एज अ वर्नलाइजेशन और यारोवाइजेशन. सो वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट गिवन टू द सीड and the temperature ranges from 0 degree to 5 degree Celsius. Okay, इसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन. सो नाउ इन वर्नलाइजेशन, अभी वर्नलाइजेशन को यहाँ पे देखो, when we are given to the वर्नलाइजेशन चिलिंग ट्रीटमेंट टू द जर्मिनेटिंग सीड को चिलिंग ट्रीटमेंट दी. ओके सो नाउ इट प्रोड्यूस वर्नैलिन हार्मोन. ये क्या प्रोड्यूस करता है? वर्नैलिन हार्मोन. अभी तक वर्नैलिन हार्मोन आइसोलेटेड किया गया नहीं है, बट मिल्चर करके एक साइंटिस्ट था, उसने वर्नलाइन हार्मोन डेवलप होता है ऐसे उन्होंने बोला कि जर्मिनेटिंग सीड में डेवलप होता है और ये वर्नलाइन हार्मोन आगे जाके जल्दी फ्लावरिंग उस प्लांट को लाता है. फॉर एग्जांपल बताओ आपको, गेहूँ की फसल लगाते हैं तो गेहूँ की फसल देखो, गेहूँ की फसल का सीज़न जो है वो
कितना है, 6 महीने का है, ओके 6 महीने या 4-5 महीने का है, तो उसको जब तक उसको चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, जितनी ठंडी पड़ेगी उसको फ्लावरिंग ज़्यादा आती है। मगर भी कुछ टेम्परेट रीजन है जहाँ पे बर्फ़ गिरती है और वहाँ पे कम ही तीन ही महीना मिलता है फसल उगाने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, सीड को वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट देते हैं, 0 to 0.5 डिग्री टेम्परेचर पे रख देते हैं बोने से पहले। उसमें क्या हो जाता है, वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट से जब बोते हैं तो उसका जो वेजिटेटिव फेज 5 महीने का है वो 3 महीने तक आ जाता है, 3 महीने में फसल मिल जाती है, क्योंकि उनके पास वो इतना ही सीज़न है। तो वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट जो बाइनियल पेरिनियल स्पीशीज़ को बाइनियल में कन्वर्ट कर देती है या एनुअल में कन्वर्ट कर देती है। सो दीज आर द वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट। सो वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट का एग्जांपल हम लोग शुगर बीट बोल सकते हैं। शुगर बीट जो है, बीट से शुगर बनाई जाती है बहुत सारे कंट्री में टेम्परेट रीजन में, तो बीट का भी ऐसे ही करते हैं हार्वेस्टिंग, उसको वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट दी जाती है। कैबेज, कैरेट, दूसरा पिक्यूट्रे, वीट, और दे आर गिवन वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट फॉर द अर्ली फ्लावरिंग। ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्नलाइजेशन? वर्नलाइजेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? वर्नलाइजेशन शॉर्टन द वेजिटेटिव फेज। वर्नलाइजेशन पहला सिग्निफिकेंस देखो, वापस रिपीट कर रहा हूँ, इट शॉर्टन द वेजिटेटिव फेज ऑफ द प्लांट एंड इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग। ये क्या करता है, जो वेजिटेटिव फेज है, मैंने आपको बोला 5 महीने से 3 महीने में पूरे फसल कंप्लीट कर देता है, क्योंकि वेजिटेटिव फेज को कम कर देता है एंड इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग, प्लांट को अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। इट इंक्रीज, सेकंड सिग्निफिकेंस देखो, इट इंक्रीज द कोल्ड एंड फंगल रेजिस्टेंट कैपेसिटी इन द प्लांट। प्लांट में फंगल और कोल्ड रेजिस्टेंट कैपेसिटी डेवलप करता है प्लांट में। ओके, दोनों कैपेसिटी क्या करता है, डेवलप करता है, फंगल एंड कोल्ड रेजिस्टेंट कैपेसिटी। सो नाउ इन कोल्डर कंट्री द सीरियल क्रॉप जो भी लगाते हैं, दिस विंटर वेराइटी कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग वेराइटी, तो विंटर वेराइटी को स्प्रिंग वेराइटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तीसरा सिग्निफिकेंस है, विंटर वेराइटी कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग वेराइटी। नाउ द फोर्थ, बाइनियल वेराइटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनुअल। बाइनियल वेराइटी मीन्स उसका जो फेज है वो बाइनियल है, 3 महीने वेजिटेटिव फेज रहेगा, 3 महीने फ्लावरिंग फेज रहेगा, तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, एनुअल वेराइटी में। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। पहला सिग्निफिकेशन, इट शॉर्टन द वेजिटेटिव फेज एंड इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग। सेकंड, it increase cold and fungal resistant capacity. Third, it can convert winter variety into the spring variety. Fourth significance, it convert biennial variety into the annual variety. Okay, these are called as a vernalization. So vernalization के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है, devernalization. The reverse effect of vernalization is called as a devernalization. Devernalization में vernalization का रिवर्स इफेक्ट किया जाता है, इट गिव हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। और वर्नलाइजेशन जो इफेक्ट है वो क्या किया जाता है, कम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन। तो रिवर्स इफेक्ट ऑफ वर्नलाइजेशन इज कॉल्ड एज द डीवर्नलाइजेशन। द हाई टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर डीवर्नलाइजेशन। ओके, नाउ ये टॉपिक, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट द अनदर न्यू चैप्टर। ओके, बाय, टेक केयर।